Good afternoon, everyone. So we'll have to start. We have to start the atomic structure also. I will start from here. Before that, sir will finish the remaining topic. Now, wave. And please don't join late, beta. You started joining after 3 o'clock. Only few students join before 3 o'clock. 8 to 10 students. Or less than that, I guess. Please join at 2:55 and wait till 3 o'clock. I will admit at 3 o'clock. Wave is a mode of transporting energy from one place to another place without actual transportation or medium through which wave propagates. सर ये कौन से कॉन्सेप्ट में आता है? क्या बेटा? ये कौन से चैप्टर में आता है? अरे एटॉमिक का नोट्स है ना सर का, जो सर आपको दिए थे. हाँ यस सर. I don't want to get confused. Two people get confused. I'm following the same notes. I will add something if it required. है ना? Okay. You just follow one notes only. Wave is sort of disturbance which originates from vibrating source and travel outward in continuous sequence of alternating crest and trough. सबसे बेसिक पार्ट जो वेव का है वो मूव करता है, उसका एक क्रेस्ट होता है और इसका एक ट्रफ होता है. जो पीक है, जो मैक्सिमा है, वो आपका क्रेस्ट हो गया, ट्रफ हो गया. अब जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो वेव से रिलेटेड है, सर्टेन टर्म्स एसोसिएटेड विद वेव मोशन, अब आपको ये सब अगर डेफिनेशन नहीं भी याद है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होने वाली. दे विल नॉट आस्क यू. First, a wavelength. It is a linear distance between two consecutive crest or trough, or the linear distance traveled by a wave in one complete oscillation, or the linear distance traveled by wave in time equal to one time period. Or simply you can write one sentence, बड़ा प्यारा sentence है. Length of one wave is wavelength. इससे प्यारा definition नहीं हो सकता. तो कहाँ से कहाँ तक one wave है? यहाँ से यहाँ तक one wave है. So this length is what? Wavelength. Similarly, कहाँ से कहाँ तक wave है? ये one wave है. That is also what? Wavelength. Or you can take a distance between two crest or two trough. तो बहुत लेट ज्वाइन करते हैं क्लास में, तो 10 मिनट एडमिट करने में ही चला जाएगा. Please join at 2:55. I will admit at 3 o'clock, and don't expect me to admit after 3 o'clock. If I'm admitting it, that's a different thing, but don't expect it. Arjun, there, beta? Yes, sir. Why did you join late, beta? Don't tell me any reason of internet connectivity. That is not the reason. It's a bad practice. यही है ना? कोई रीजन तो नहीं था लेट ज्वाइन करने का? अर्जुन? नो सर, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता बेटा. सबके साथ नहीं हो सकता. 8 बच्चे ने ज्वाइन किया है, 12 बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, इसका मतलब इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस है. So I will not admit after 3 o'clock. If you have proper reason, please WhatsApp me. You have mailed my number. Everyone have number? Yes, sir. Who doesn't have my number? Anyone? सबके पास नंबर है. नंबर नहीं हो तो you can take from any center, right? We'll get it. But try to make a good practice of discipline कि 3 o'clock के बाद हम एडमिट नहीं करते. करेंगे, मैं तो एडमिट कर ही दूंगा, जानते हैं आप कैसा हूं मैं, लेकिन यू शुड गिव अ प्रैक्टिस. 2:55 को ऑफिशियली ज्वाइन करिए. 3 o'clock से क्लास स्टार्ट हो जाएगी. अब मैं जितना लेट करूंगा उसको मैटर नहीं करता. डोंट वरी अबाउट इट. आई एम मेकिंग इट लेट बिकॉज ऑल आर नॉट ज्वाइनिंग. So what is wavelength? Length of one wave. यूनिट क्या होगी इसकी?
मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये क्या है बताओ? एंग्स्ट्रॉम यूनिट। तो ये भी होता है, नैनोमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, एनी यूनिट ऑफ लेंथ विल बी यूनिट. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन. वन कंप्लीट का मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. तो लैम्डा डिस्टेंस कवर करने के लिए वेव को कितना टाइम लगेगा? टी. क्लियर है? So time taken for one wave oscillation is what time taken? Frequency, number of oscillation completed by a wave in 1 second. The number of waves in 1 second. Simple. The number of waves passing through a point in 1 second. तो t सेकंड में कितने वेव पास कर रहे थे? बोलो. 1. Time taken for one wave is what? Time. तो टी सेकंड में वन वेव पास कर रहे थे, तो 1 सेकंड में 1/t. 1/t को ही क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. इसको आप और f लिख सकते हैं और cps भी लिख सकते हैं. cps व्हाट? साइकिल्स पर सेकंड. डिपेंडिंग ऑन यूनिट आप कौन सा यूनिट यूज करते हैं. तो पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं. तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का भी तो लिखना पड़ेगा ना. तो दे डिडंट, इसमें नोट्स में वेलोसिटी का डेफिनेशन नहीं है. सिंपली वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? वेलोसिटी विल बी व्हाट? Frequency upon time. नहीं, फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम से. फ्रीक्वेंसी और टाइम तो रिलेटेड है ना. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. वेलोसिटी और स्पीड केमिस्ट्री में सेम लेते हैं. Displacement covered in unit time. या सिंपली डिस्टेंस लिख सकते हैं. डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी को हमने मान लो v से डिनोट किया. तो डिस्टेंस अगर लैम्डा कवर हुआ तो टाइम कितना लगा? t लगा. हेलो. डिस्टेंस अगर लैम्डा Yes, कवर sir. किया तो टाइम t लगा. और लैम्डा इंटू क्या लिख सकते हैं? 1/t. और 1/t क्या था? Frequency. तो वेलोसिटी इज नथिंग बट लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. फॉर लाइट ही नहीं, और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट फॉर्म में EMR लिख लेंगे. वेलोसिटी क्या होती है? इज c. तो वेलोसिटी c है. हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? लैम्डा अपॉन t, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. बट वेलोसिटी क्या बन गया? c. तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c अपॉन लैम्डा. एनी डाउट इन दिस? अगेन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड. सिंपल. नाउ व्हाट इज वेव नंबर? आपने सारे टर्म पढ़े होंगे पर वेव नंबर नहीं पढ़े होंगे. And really have a request. If you're joining late after 3 o'clock, please drop a message to me. आप ये भी केयर नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ ना. ये भी केयर नहीं करेंगे. आप आराम से फिर से लेट ज्वाइन करेंगे. फिर लेट ज्वाइन अगर मैं एडमिट नहीं करूँगा तो सेंटर हेड को कॉल करेंगे, हमें मैसेज नहीं करेंगे आप. तो ये सब प्रैक्टिस बंद करिए और ट्राई टू ज्वाइन द क्लास ऑन प्रायर टाइम, जो टाइम अलॉट किया हुआ है. तो वेवलेंथ, वेव नंबर देखो क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ. तो लैम्डा मीटर में कितने वेव हैं? 1. तो 1 मीटर में कितने वेव होंगे? 1 अपॉन लैम्डा नंबर ऑफ वेव्स. सिंपल. तो जो फ्रीक्वेंसी का साइन न्यू था, फ्रीक्वेंसी का साइन देखो ऐसा लिखते हैं, ऐसा ऐसा लिखते हैं साइन. दिस इज द साइन फ्रीक्वेंसी का. तो इसका साइन क्या होगा? दिस. न्यू बोलते हैं, न्यू, नया.
न्यू बार हो गया, तो न्यू बार इज 1/लैम्डा। तो न्यू बार का यूनिट क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकेंड, मिनट, समथिंग। एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड हमारे काम का नहीं है केमिस्ट्री में, बट जान के रखना है। इट इज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ oscillating electric and magnetic field perpendicular to each other, and these two field component are also perpendicular direction of propagation of wave। तो दो वेव का बना हुआ मिक्सचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो अगर एक वेव x के अलॉन्ग या y के अलॉन्ग जा रही है, ये z के अलॉन्ग जा रही है दूसरा वेव, तो जो मोशन होगा वेव का वो परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको मीडियम की कोई जरूरत ही नहीं है। और इनकी वेलोसिटी क्या होती है? c। और c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। Electromagnetic waves move with velocity of light in vacuum. According to Maxwell, electromagnetic wave theory, energy and intensity of electromagnetic wave is proportional to amplitude square। जो wave theory है, according to wave theory, intensity is proportional to a square। जो बाद में किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के कारण इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी फिक्स रहेगी, तो चेंज क्या होगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? c/लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/लैम्डा। लैम्डा बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ये सब सभी होते हैं। If all the components of electromagnetic radiation are arranged in order of increasing wavelength but decreasing frequency, the pattern obtained is known as electromagnetic rays। ये पूरा पैटर्न है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा या फ्रीक्वेंसी कम होगा। विजिबल लाइट का अब जानते हैं, वायलेट का 700 नैनोमीटर। हाँ, तो आप जानते ही हैं। तो वायलेट हैज लोअर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी। अब ये सब रीड करना तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये सब कराया हुआ है आपको एटॉमिक मास का। तो अब एक क्वेश्चन करने के पहले लेट्स समराइज दिस पार्ट। ठीक है, तो वेव के क्या क्या प्रॉपर्टी बताइए फिर से? वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, बोलो, वेलोसिटी और वेव नंबर, और लास्ट में आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 1/t, वेव नंबर इज व्हाट? 1/लैम्डा,
velocity is wavelength upon time जो यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा. This from this frequency is what? C upon lambda. We can also write this as C into 1 upon lambda. That is C mu bar. Done. तो नोटबुक में सिर्फ इतने ही लिखिए, इससे ज्यादा कुछ मत लिखिए. लिखा? सबने लिख लिया? इतना लिखिए सर, और कुछ मत लिखिए. For electromagnetic radiation, that is a broad spectrum, बहुत सारे एग्जांपल थे. वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? C, that is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड. इतने ही चीजें यूज होगी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए. क्वेश्चन सॉल्व करिए. Atomic structure is again purely problem solving. हो गया सर. बस देखना करना क्या बेटा, लैंग्वेज को बीट करनी है हमेशा. एक में से लर्निंग लीजिए, सिर्फ लैंग्वेज को बीट करनी है. विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ये सब इंग्लिश में कुछ कुछ लिखा रहेगा. मेन हमारा टारगेट क्या है? डेटा पिक करना. फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलो हर्ट्ज है. किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करनी है. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर. अभी सब इतना हाई फाई लिखा था, सिंपली में क्या पता है? फ्रीक्वेंसी पता है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज. एंड हर्ट्ज क्या होती है? पर सेकंड. अब C इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? लैम्डा अपॉन टाइम, और लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो गया? C अपॉन फ्रीक्वेंसी. C की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. सेकंड कैंसिल हो जाएगा. मीटर आएंगे सर. मीटर अप्रोक्सीमेटली. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज अब लिखो, लिखा है लैम्डा 219 मीटर है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव वेवलेंथ. वेवलेंथ का जो रेंज दिखेंगे. द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. तो देखो ये फिर से कुछ कुछ लिखेंगे. वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है. एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन द फ्रीक्वेंसी. कर पाओगे? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा, जहाँ C क्या है? फिक्स. निकाल लेंगे ये भी.
कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ अ लाइट। एक ये सॉल्व कर लिए, थर्ड वाला कुछ नहीं है, सब में बस एक ही फॉर्मूला लगाना है। Done, sir. आसान था। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ था, तो टाइम पीरियड से आप क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो वेवलेंथ भी निकल जाएगा। येलो लाइट emitted from a sodium lamp has a wavelength of this, calculate the frequency and wave number। निकालिए। बस लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर यूनिट नैनोमीटर है या मिलीमीटर है? नैनोमीटर बेटा, नैनोमीटर। ओके सर। नैनो। पहले अगर आपको दिक्कत है, मैं आपको पहले इससे सारी लिख देता हूँ। 1 कितना होता है बताओ? दिस 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो कैन यू टेल मी 1 नैनोमीटर कितना एंगस्ट्रॉम होता है? What is this? Micrometer. What is this? Picometer. 1 FM, फेम्टो या फर्मी बोलते हैं। बताओ कितना होगा? 1 नैनोमीटर कितना एंगस्ट्रॉम होगा? बताइए। 1 नैनोमीटर कितना एंगस्ट्रॉम होगा? सर 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम। तो बड़ा यूनिट कौन हुआ? नैनोमीटर से बिगर यूनिट। ये यस सब आपको कन्वर्जन यूज होंगे। सॉल्व कर लो। अब कैलकुलेशन आपको खुद से करिएगा। डोंट यूज कैलकुलेटर। टेक योर टाइम प्रॉपर्ली। डोंट बिलीव ऑन कैलकुलेटर। नो, you can believe it, but don't use it, but it will not help you to learn the calculation. You learn approximation only by doing calculation.
No one can teach approximation. Wavelength you know 580 नैनोमीटर है, मीटर में क्या होगा? 580 to 10 raised to -9. फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेव नंबर निकालना. व्हाट इज वेव नंबर? 1/λ. दिस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सर 10 raised to 15 है क्या आंसर? किसका आंसर है? 15 फ्रीक्वेंसी का, इस क्वेश्चन का? फ्रीक्वेंसी का ना. हाँ सर. हाँ, हो सकता है अप्रोक्सीमेटली. सो दिया द एक्सप्रेशन. और देखो, वेव नेचर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी. तो वेव नेचर थ्योरी था जो एम्पलीट्यूड बोल रहा था, जो कह रहा था कि इंटेंसिटी इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, it depends on it is explained by using particle nature. Particle nature of radiation. कौन सा रेडिएशन? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता. ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख लीजिए. When solids are heated, they emit radiation over a wide range of wavelengths. NCERT में given है ये. You should read it. For example, पूछते नहीं है क्वेश्चन, पर एक बार कभी भी गलती से पूछा तो फिर अफसोस नहीं करना चाहिए. For example, when an iron rod is heated in a furnace, it first turns to dull red and progressively becomes more and more red as the time increases. As this is heated further, the radiation emitted becomes white and then becomes blue as the temperature becomes very high. In terms of frequency, it means that the frequency of emitted radiation goes from a lower frequency to a higher frequency as the temperature increases. जब टेम्परेचर बढ़ता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन है वो लोअर से हाई की तरफ शिफ्ट होता है. The ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies is called a black body. What is a black body? It's a theoretical concept जो किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और सारे किसी को भी एमिट कर लेगा. It means it can absorb all types of radiation, it can emit all types of radiation. Black body, the radiation emitted by black body or black body radiation. ग्राफ देखो, मुझे ये जानना है. इस इक्वेशन को कहते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट थ्योरी. कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ किसके पीछे पहले देख लीजिए. एक ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है. ब्लैक बॉडी को आप टी टेम्परेचर पे ले गए, टेम्परेचर टी पे ले गए, तो टी पे जो ले गए हायर टेम्परेचर, उसकी एनर्जी बढ़ गई. फिर से वो नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेगा ना. जैसे आप गर्म पानी लेते हो घर में, छोड़ दोगे तो ठंडा बन जाएगा फिर से वो, तो हीट रिलीज होती है. तो ब्लैक बॉडी को जब हीट करोगे आप, वो फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा और रेडिएशन एमिट करेगा. तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेडिएशन एमिट करता है वो, डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेडिएशन एमिट करता है अलग अलग टेम्परेचर पे. जैसे इस केस में देखो T1 टेम्परेचर देखते हैं, तो T1 टेम्परेचर पे वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के वेवलेंथ को एमिट करेगा और हर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी इंटेंसिटी होगी. इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी निकल रही है उस वेवलेंथ से रिलेटेड. तो देखो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर अ इंटरमीडिएट वेवलेंथ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली पोजीशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेवलेंथ
कम हो जाएगी। तो लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब t बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, कम। व्हाट इज लैम्डा मैक्स? लैम्डा मैक्स इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, it is not maximum wavelength, it is the wavelength, it is the wavelength at which क्या maximum, intensity is maximum। 0 से infinity तक में कितने भी वैल्यू हो सकते हैं wavelength के। Close it। एक मिनट। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ जो आपको याद रखनी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो एमिट हो रही है उससे रिलेटेड। ब्लैक बॉडी radiation, again this position is wavelength corresponding to maximum intensity at that particular temperature। अगर और ज्यादा हीट करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली पोजीशन है वो लोअर वेवलेंथ में मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ड्रॉ द ग्राफ सिमिलर टू, या ड्रॉ द ग्राफ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया, रेडिएशन फॉर इंटेंसिटी, डोंट मेक इट रॉन्ग, ट्राई टू मेक इट करेक्ट, आप कर सकते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड थिंक ओवर इट। अगेन मैं बता दूं, लैम्डा मैक्स क्या है, दिस पॉइंट इज व्हाट, Maximum intensity. लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स कम होता है अगर आप हाई टेम्परेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कराते हैं। तो सेम टाइप ऑफ ग्राफ मुझे चाहिए इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, मतलब व्हाट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड करनी है। करिए ट्राई। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आपके थॉट प्रोसेस को चेक करेगा कि आप कितना सोचते हैं। तो कोई हाई फाई थ्योरी नहीं है। इधर आओ।
जिसका भी हो जाए मुझे भेजिएगा तुरंत, डोंट वेट फॉर इट। वही लैम्डा इंटू टू इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। लैम्डा वन टी वन इक्वल टू लैम्डा टू क्या हो जाएगा, टी टू। आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स, if I give 3 parameters, one you can find it out. हेलो दिशा, ग्राफ बना? हाँ सर, एक लाइन गलत बना है। सलत बनने दो, देखो गलत बनने दो लेकिन बनाओ, ठीक है ना? गलत बनने दीजिए, गलत से कोई टेंशन नहीं है। सर भेजा है मैंने आपको। हाँ बेटा, नहीं गलत है। क्या गलती है सोचिए। प्योर एनालिटिकल है, कोई हाई फाई केमिस्ट्री नहीं, कोई फिजिक्स नहीं, कोई मैथ्स नहीं। सिंपल उस ग्राफ को देख के ग्राफ बनानी है। तब तक आप लोग सोचिए ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, सब छोटे छोटे थ्योरी है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सर वो ग्राफ का एक बार बताओ। ग्राफ ही बताऊंगा मैं, आप सोचो, मैं बताऊंगा एंडिंग में। सर ये बताओ ना। ग्राफ, ये कौन है? ओमकार था। ओमकार था क्या? बताऊंगा, देखो जब मैं बता, मेरे बताना से सीखोगे कि आपकी ट्राई करने सीखोगे, बताओ। तो आप मेरे रेगुलर क्लास में रहते हो, मैं आधा घंटा देता हूँ करने के लिए, पर क्लास में यहाँ पे इनर्ट हो जाएगी, पूरा शांत हो जाएगा और चेक नहीं होगा कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आई विल डिस्कस इट, थिंक ओवर इट ना। तब तक छोटे ओके छोटे सर। थियरी है, चलेगा। सीरियसली कह रहे हैं, अगर मैं बता दूंगा उस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी। आपने कुछ दिमाग लगाया कि 5 मिनट तो सोचा, 5 मिनट भी नहीं सोचा होगा। डोंट एवर ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन क्विकली, उससे आप कभी नहीं सीखोगे। जब तक उस पर सर नहीं खपाओगे, अपना अपने को तकलीफ थोड़ी सी नहीं होगी कि यार कुछ तो दिक्कत हो रही है। यू आर नॉट वर्किंग ऑन द ग्राफ गिवन। जो ग्राफ गिवन है, जो ग्राफ ऑलरेडी नोन है, उसी को यूज करके ग्राफ बनानी है। उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, तो ही आप हैंडल कर पाएंगे। तो कोई नया थ्योरी नहीं है, द एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। Toughest problem can be created using very simple concepts. It is a example of that. According to Planck's quantum theory, atoms or molecules radiate or absorb energy discontinuously in the form of small packets of energy. अब ये पढ़ने के पहले जो इंग्लिश लिखी हुई है उसके पहले हम समझते हैं। जब लाइट हमारे पास पहुंचती है, जो सनलाइट आ रहा है, जो रेडियो वेव आ रहा है, कोई भी वेव आ रहा है, तो अपने साथ वो एनर्जी लेके आती है। डेफिनेटली आपको गर्मी लगती है, तो गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि अपने साथ एनर्जी लेके आता है। वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको गर्मी लगती है। जो एनर्जी आती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती है, वो छोटे 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 पैकेट्स में आती है। क्वांटम वर्ड का मतलब होता है क्वांटाइजेशन का वर्ड। देखो नोटबुक में लिखिए सब लोग, क्वांटाइजेशन एक नया वर्ड ऐड हो रहा है आपके। क्वांटाइजेशन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल वैल्यू। नाउ कैन चेक द चार्ज। किसी पे चार्ज किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? बोलो। जब मैं कहूंगा कि मेरे पास चार्ज है, आपसे मैं क्या निकाल सकता हूँ? हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ क्या? किसके एटम से मैं हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ? बताइए। नो सर।
अगर सोडियम एटम ले लिया मैंने एक, उससे मैं एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, तो +1 आएगा। 2 निकाल दूंगा तो +2 +2 आएगा। पर कैन आई जनरेट NF2.5 प्लस? क्या नो लिखा सर। है? क्यों नहीं जनरेट कर सकता? सर हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो मतलब जो चार्ज होगी वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज का मल्टीपल होगा ना। यस सर। मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने। इसमें क्या यस सीखते सर। हैं कि जो चार्ज होती है किसी बॉडी पे, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल वैल्यू, दैट इज चार्ज। नाउ स्मॉल, ये जनरल वर्ड है जो हमने मेंशन किया है, ये जनरलाइज वर्ड है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत जगह यूज करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू है यही क्या है? तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज? 1। 1 इलेक्ट्रॉन। 1 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उससे आधा निकाल सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन? किसी से नहीं निकाल सकते। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, बट इट विल बी ऑलवेज मल्टीपल ऑफ व्हाट? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सेम थिंग, जब एनर्जी हमारे पास पहुंचती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम वर्ड वहीं से आता है, 1 पैकेट। 1 क्वांटम का मतलब 1 पैकेट। अगर कोई लाइट आपके पास आ रही है, सोडियम लाइट, येलो लाइट आ रही है, येलो लाइट का अपना वेवलेंथ होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में मिलेगी। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और एनर्जी एमिट होगा, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल पैकेट। EQ क्या है बोलो? एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम। और E क्या है? E एब्जॉर्ब और E एमिट क्या है? टोटल एनर्जी। क्या है ये बताइए? टोटल एनर्जी। और N क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए लाइट से, मुझे तो मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा पैकेट लेना पड़ेगा। एक बड़ा पैकेट नहीं मिलने वाला। जस्ट लाइक चार्ज, अगर ज्यादा चार्ज चाहिए, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल दूंगा। समझे दिशा? क्लियर है? हाँ सर। तो जो एनर्जी हम मुझे चाहिए लाइट से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, वो छोटे छोटे पैकेट्स में ही आएगा। तो ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा पैकेट चाहिए, कम एनर्जी है तो कम पैकेट चाहिए। और वो कहता है कि जो एनर्जी EQ है, व्हाट इज EQ? एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। EQ प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और EQ को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो h न्यू बन जाता है, वेयर h इज व्हाट? डेफिनेटली प्लैंक ने दिया तो किसका कांस्टेंट होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट की Planck's वैल्यू constant। 6.626 into 10⁻24 जूल सेकेंड, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या है? पर सेकेंड। E का यूनिट क्या होगा? जूल्स। तो h की यूनिट क्या होनी पड़ेगी? जूल सेकेंड, ताकि सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाए। बस। तो EQ क्या है बताओ फिर से? एनर्जी ऑफ क्वांटम। फॉर्मूला क्या है? h न्यू। न्यू का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? 1/लैम्डा का। बस, ये सारे फॉर्मूले हैं। नाउ EQ की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली स्मॉल वैल्यू होगी, क्योंकि स्मॉल एक पैकेट है ना, एक पैकेट है, उस पैकेट को इंक्रीज करोगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कम रखोगे तो कम एनर्जी मिलेगी। तो यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। दे आर द फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्वेश्चंस। कहता है according to Planck's quantum theory, atoms or molecules radiate or absorb energy discontinuous. Why is discontinuous? बताइए। अगर एक पैकेट की एनर्जी मान लीजिए 1 जूल है, तो 2 पैकेट की एनर्जी क्या होगी? 2 जूल। 2 जूल्स। मतलब अगर उसी रेडिएशन से मैं अगर मैं 1.5 जूल चाहिए होगा, मुझे मिल पाएगा क्या?
नहीं। तो सारे एनर्जी मिल पाएंगे क्या उस रेडिएशन से? नहीं मिल पाएंगे, है ना। अगर एक पैकेट की एनर्जी 1 जूल है, 1 क्वांटम या पैकेट, तो 2 पैकेट की एनर्जी 2 जूल होगी। तो 1.5 जूल्स वी कैन नॉट ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम दैट रेडिएशन, तो दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर मैं 1.1 भी मिल जाता, 1.2 मिल जाता, सारे नंबर ऑफ एनर्जी मिल जाते, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूसली एनर्जी मिल रही है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रही है। Since all the energies cannot be obtained, only it is integral multiple of small packet. That's why it is discontinuous form. The smallest packet of energy is called quantum. In case of light, the quantum is known as photon. तो एक नया वर्ड क्या हो गया दूसरा? Photon. The energy of a quantum is directly proportional to the frequency of the radiation. E is proportional to nu, E equal to h nu हो गया. H की वैल्यू पत्ते लिखा हमने. According to Planck's quantum theory, total energy or emitted or absorbed is the integral multiple of h nu, nh nu. ये बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा, नोटबुक में लिखिए। बेसिक फॉर्मूला क्या लिखोगे? यहाँ पे इक्यू कर लो, बेटर होगा। इक्यू का मतलब क्या है? क्वांटम। तो ई का वैल्यू क्या होगा? एन इक्यू। तो टोटल एनर्जी क्या लिखा हमने? ई। एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या लिखा? इक्यू। आगे समझ में बात यहाँ तक? हेलो। Yes, sir. अब देखो, जूल्स किसकी एनर्जी यूनिट होती है? यूनिट ऑफ एनर्जी ईवी। ईवी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी एनर्जी होगी? यूनिट होगी। अगर एक तरफ जूल है, जूल्स है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट होगी? Energy. एनर्जी का यूनिट होगा, क्योंकि सेम यूनिट को ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो अगर मैं चाहता हूँ, तो ये पार्ट अब मत ध्यान दीजिए, मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है। आप सिर्फ यूनिट पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। 1 जूल क्या हो गया? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। ये डाउट? No, sir. तो हमारे पास अगर देखा जाए तो एनर्जी ऑफ क्वांटम के फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो एच भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है ना, Yes, sir. अपॉन लैम्डा। अगर मैं ये जूल सेकंड लेता हूँ और ये मीटर पर सेकंड लेता हूँ, तो लैम्डा भी किसमें लेना पड़ेगा? मीटर में। ऑल शुड बी इन सेम यूनिट। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, अप्रोक्सीमेटली आएगा 2 इंटू 10⁻25 अपॉन लैम्डा। अगर ये लैम्डा मीटर में ले ले तो एनर्जी किसमें मिलेगी? जूल्स में। ऑल आर इन एसआई यूनिट, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला उन्होंने जनरेट किया, E इक्वल टू 6.626 लिखा, ईवी नहीं, जूल सेकंड, इनटू देखो, उन्होंने लिखा तो था, पर ये पोर्शन क्या है? ये है। जूल्स को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किससे डिवाइड करोगे? 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 3 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻10 कर दिया, ये किस में आ गया? बोलो। एंगस्ट्रॉम Armstrong में। unit. तो लैम्डा भी किसमें लेना पड़ेगा? Armstrong. तो एनर्जी का फॉर्मूला आया 12400 अपॉन लैम्डा। अप्रोक्सीमेट है, ये बहुत अप्रोक्सीमेशन है। तो मुझे अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब मैं समरी दिखाता हूँ यहाँ पे, देखना सब लोग।
तो वो ग्राफ की सोचिए, ई क्यू क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटम, फॉर्मूला क्या फिर से, एच न्यू एच सी बाय लैम्डा एच सी न्यू बार, ठीक। इसका दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या था, 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर, डायरेक्टली किसमें मिलेगा, जूल्स में। मुझे अगर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, मुझे अगर चाहिए नैनोमीटर में, बस, तो ये सारे फॉर्मूले किसके हो गए, व्हाट इज इक्यू, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, और फोटोन, व्हाट इज क्वांटम, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, उससे छोटा पैकेट नहीं हो सकता। ये सब सारे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो अगर मुझे जूल्स को कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किसे डिवाइड कर दूंगा, 1.6 × 10⁻19 से। यहाँ तक क्लियर है, हेलो। Yes, sir. तो ये नोटबुक लिखिए, पहले लिखिए, डाल दीजिए हेडिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और ये सारे फॉर्मूले लिखिए। तो मोर और लेस फॉर्मूला बेस्ड सब क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड थ्योरी के पहले। और टोटल एनर्जी एन एच न्यू और एन ई क्यू। सबने नोट कर लिया। एक और रिजल्ट जो हो सकता है मिसिंग हो, या होगा तो देख लेते हैं पहले, है तो अच्छी बात है। ठीक है, एक रिजल्ट एक और लिखते हैं, बहुत प्यारा कन्वर्जन है, बहुत प्यारा। जब मुझे बताओ, एक क्वांटम की एनर्जी अगर EQ है, तो 1 मोल ऑफ क्वांटम एनर्जी कितनी होगी, बताओ क्या करना पड़ेगा। 1 मोल क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी, क्या करना पड़ेगा दिशा, बोलो। तुमने म्यूट किया है क्या, कोई बोल नहीं रहे हो। मास्किंग एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज EQ, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटम क्या होगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्वांटम। 1 मोल जब क्वांटम बोलते हैं तो क्वांटा यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म। 1 मोल ऑफ क्वांटम ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन, पर्टिकुलर रेडिएशन बोलना जरूरी है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज फिक्स फॉर पर्टिकुलर रेडिएशन। जो एमिट होती है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्या हो जाएगा, सिंपल, Na इंटू EQ या Na इंटू एच न्यू, दैट मीन्स एन की जगह पे क्या पुट कर लोगे, Na। हेलो, ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. तो 1 मोल क्वांटम निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, और क्या करना होगा। और इसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल यूज करो, पर क्वांटम यूज करो, कुछ भी यूज करो, इसकी जूल्स में एनर्जी क्या होगी, बोलो।
अब पार्टिकल की जगह पे आप क्वांटम यूज कर सकते हैं। कुछ हाई फाई लिखा नहीं मैंने। किलो जूल में क्या होगा? क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जूल्स को किलो में कन्वर्ट करने के लिए? दिस। अब पर पार्टिकल की जगह पे मुझे पर मोल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? दिस। क्लियर यहाँ तक? कन्वर्जन ये क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes, sir. कोई खास सिंपल 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 लिखा है। ये होता है 96.35 किलो जूल पर मोल। मतलब डायरेक्टली अगर पर पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्वांटम पता है, मुझे किलो जूल पर मोल चाहिए, पर मोल ऑफ क्वांटम, तो मैं सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 96.4 किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे अगर कन्वर्ट करनी है, मुझे किलो जूल, एक मोल की एनर्जी पता है, मुझे एक पार्टिकल की एनर्जी पता करनी है, एक क्वांटम की एनर्जी पता करनी है, तो किसे डिवाइड कर लूंगा? 96.4 से डिवाइड कर लूंगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा यूज करते हैं आप। दिस इज वेरी गुड कन्वर्जन। एग्जाम्पल क्वेश्चन करिए। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन बोला है, विच कोरिस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10। एच पता ही है, न्यू पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही मिल जाएगा। करिए। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। एनर्जी आपको जूल्स में निकालनी है, एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल photons of same light. I need a expression, थोड़ा फास्ट करिए, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाइए मुझे लिख के।
दिशा लिख लिया बेटा? हाँ सर, सब 1 कन्वर्जन, मोल फोटॉन्स के लिए E into Na होगा। हाँ E to N होगा, बट यू कैन फाइंड आउट इन अ डिफरेंट मेथड आल्सो। आई वांट टू चेक द अदर मेथड। तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? जूल में तो आंसर आ गया, जूल में तो आंसर आपको लिखा ही हुआ है, एच न्यू लगा दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? क्या करोगे उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए? डिवाइड बाई दिस। हेलो, यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है बताइए? नो सर। तो 1.2375 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्वांटम और पर फोटोन। बिकॉज क्वांटम का स्पेशल नाम क्या है? फोटोन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? लाइट होती है। ये लो वेव की ओर में कोई भी एक लाइट होगा उसको हम फोटोन बोल देंगे, क्वांटम। और कुछ नया नहीं है। फोटॉन्स इतना लिखेंगे क्लास में, आपको लगेगा कि क्वांटम ही नहीं होता, फोटोन इंपॉर्टेंट है। क्वांटम इज अ जनरल टर्म, फोटोन स्पेशल टर्म। अब मुझे एक क्वांटम का 1.2375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है। आई वांट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो हम क्या करें? बताइए। into Na। एनए तो करेंगे ही ऑब्वियसली, एनए तो करना ही है, एनए करके ही तो आंसर आता है। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड? कौन बताएगा? बताओ। सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल का वो आपने वैल्यू बताया था ना, बस 1.6 into वो वाला। तो टाइम ले लिया आपने। सिंपली करनी क्या है बताइए? 1.2375 इंटू 96.4 क्या हो जाएगा? हो गया आंसर। कौन सा बेटर है? जूल्स में निकाल के उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकाल के कर लेना? सर 96.4 वो नंबर का वैल्यू है जो आपने पहले लिखो बोला ना था। उसको, ले लिखो तो लिखो, फिर लिखो इस चीज को। यही तो सॉल्विंग का टेक्निक है सर, इतना ही पार्ट। सारे सॉल्विंग मेथड यही तो लिखे हुए हैं। डन सर। ठीक है, कन्वर्जन आपको सिखा दिया। फॉर्मूले से, एक थ्योरी से कुछ नहीं होगा। वी शुड लर्न हाउ द सॉल्विंग विल बी डन। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन, अब एनर्जी पता है। एनर्जी ऑफ फोटोन रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिस निकालना है, मतलब वेवलेंथ पता है। मुझे अगर डायरेक्टली चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मुझे वेवलेंथ पता हो एंगस्ट्रॉम में, तो किस में निकल जाएगा डायरेक्टली? कुछ फॉर्मूला से।
दिस आसान है ना? हाँ यस सर सर अच्छा अगर सर जूल्स में निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1.6 into दिस। इन्हीं में से टू अप्लाई, दोनों अच्छे हैं। हाँ सर अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? ये मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, सॉल्व करिए, क्योंकि यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, मतलब बेसिक लेवल पे। The number of photon of wavelength 540 nanometer emitted per second by an electric bulb of power. Power पता है क्या होता है? पावर को यूनिट क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ, तो पावर इज न्यूटन एनर्जी अपॉन अपॉन टाइम टाइम। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट वॉट। पर वॉट होता क्या है? जूल पर जूल पर सेकंड। सेकेंड। ठीक है, सब आपको पता ही है। बेसिकली 100 वाट का मतलब। 100 जूल्स पर सेकेंड। नाउ रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। आपके सिंपलिसिटी के लिए एच की सिंपल वैल्यू ले लिया हमने। सॉल्व हुआ किसी का? उनका सॉल्व हुआ? हेलो, उनका यस सर। सॉल्व हुआ? सर ट्राई कर रहा हूँ सर। करिए। सुमित, सर सॉल्विंग सुमित, चालू है। हाँ, नहीं, ट्राई टू ऑलवेज जनरेट द एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन, देन डू द सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन स्टार्टिंग से मत करिए, राइट इन द सेम फॉर्म, एक्सप्रेशन जनरेट करिए, देन अप्लाई करिए। सॉल्व हमेशा लास्ट में होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में, कभी कभी पहले करने से फायदा होता है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम लास्ट में सर करना। n 3000 जो 10 raised to power -14 है। एन, अच्छा खुद सोचो एक बार, नंबर ऑफ फोटोन कभी 1 से कम हो सकता है? नहीं सर। आप 1 फोटोन लेंगे, 2 फोटोन लेंगे, आधा फोटोन लेंगे क्या?
नहीं सर। नहीं। बस तो गलत हो गया आप। बिल्कुल फंडामेंटल है, यूनिट मेथड लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एनीवन? सिग्नल? नहीं है सर। हाँ सर। हो गया? हो गया बेटा? नहीं सर, नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहा हूँ सर। सर 1 मिनट। हम्म। देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन ही अच्छा है। अच्छा एकमात्र क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब, कहो तो इससे टफ नहीं मिलेगा आपको, इसमें सिंपल इतना ही क्वेश्चन है। कॉपी, विल डिस्कस द क्वेश्चन। देखिए, अब आप मुझे बताओ, EQ का फॉर्मूला क्या था? H न्यू। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? NH न्यू। एनी डाउट? नो सर। अब H न्यू तो निकाल लोगे आप। H निकालने में क्या है? 6 × 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁻8 अपॉन 540 इंटू 10⁻⁹ क्या गया जूल्स। ना, लेकिन ये जो टोटल एनर्जी कितनी है, डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत कम है 100 जूल के सामने। तो 100 जूल पाने के लिए मुझे एक फोटोन से काम चलेगा नहीं, एक से ज्यादा लेने पड़ेंगे। अगर ये हमारा 100 जूल्स पर सेकेंड है, तो जो n होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड व्हाट पर सेकेंड। ई किस पे डिपेंड करेगा? n पे डिपेंड करेगा ना, वो h न्यू तो फिक्स है। h न्यू गॉट अ फिक्स्ड वैल्यू which you already calculated here. Now if n will change, then E will change. So total energy जो emitted है, ये absorbed, will depend on the number of n. Any doubt in this? हाँ सर। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो 100 जूल, क्योंकि पावर दिया हुआ 100 वाट, 100 जूल पर सेकंड, और क्वेश्चन भी क्या पूछा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या पूछा है? पर सेकंड ही पूछा है। एन इज अननोन क्वांटिटी। एच न्यू का आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था,
अपॉन 540 इंटू 10⁻⁹ हो गया आंसर, n का निकल गया वैल्यू। निकाल सकते हैं जो वैल्यू आएगी। डन बेटा। हेलो, डन यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। चलिए, आप पेज नंबर 37 तक पढ़िएगा, ठीक है? जो समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, इग्नोर करिएगा। हो सकता है लास्ट का कुछ भी समझ में ना आए, जहाँ तक हमने डिस्कस किया वहीं तक, लेकिन फिर भी जस्ट रीड इट फॉर मी वंस, जस्ट रीड इट, विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब मैं उस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। किसी को ग्राफ समझ में आया कैसे हैंडल करनी है? सर नहीं सर। अब देखिए मुझे, ये कौन सी पोजीशन है? वेवलेंथ का पोजीशन है, तो ये मिनिमम वेवलेंथ है, तो इधर क्या होगा? मैक्सिमम। तो मिनिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है बताइए? टेंडिंग टू 0। और यस सर। मैक्सिमम वेवलेंथ पे भी क्या इंटेंसिटी? बोलो। टेंडिंग टू 0. 0। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। यस सर। या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा। अगर मिनिमम वेवलेंथ है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम वेवलेंथ है तो Minimum मिनिमम frequency. फ्रीक्वेंसी। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. और इंटरमीडिएट वेवलेंथ है तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ विल बी अगेन सिमिलर, स्लाइड चेंज होगा। लाइक दिस, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी मिनिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। और अगर T1 टेम्परेचर पे वेवलेंथ लैम्डा 1 है और T1 इज लेस देन T2, और T2 टेम्परेचर पे लैम्डा 2 है एंड लैम्डा 2 इज लेस देन व्हाट? लैम्डा 1। तो अगर ये हमारा T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो T1 पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर T1 पे लैम्डा 1 ज्यादा था तो T1 पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बोलो। T1 is less than T2 as like in the above graph. तो लैम्डा 1 क्या था? मोर देन लैम्डा 2, मोर देन लैम्डा 3। फ्रीक्वेंसी 1 क्या हो जाएगी? This got it or not?
इंटरमीडिएट वेवलेंथ जीरो नहीं हो जाएगा ना, इंटेंसिटी तो मैक्सिमम होनी है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, तो उस वेवलेंथ पे तो फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू तो होगी। ऊपर वाले ग्राफ में T1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी वाली मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लैम्डा है वो ज़्यादा है, तो सेकंड वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी के टर्म में ग्राफ बनाएंगे तो T1 पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर है? हाँ सर। सर पक्का? हाँ बोलो। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होना चाहिए ना? ये कहाँ लिखा है? ऊपर वाले ग्राफ में क्या बताया हुआ है कि लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जीरो, मैक्सिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जीरो, और पहले intensity increasing for a particular increase in wavelength again decreases, same pattern will follow for frequency also ना। ऐसा होता कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता तो, और ऐसा है क्या यहाँ पे? नो सर। तो मिनिमम वेवलेंथ पे, ये तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा दिशा, ये पार्ट। और ये तुम्हें समझ में आ गया तो तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसका कोई मतलब नहीं है। मिनिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जीरो थी, मैक्सिमम वेवलेंथ पे भी इंटेंसिटी जीरो थी, सिमिलरली मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, मैक्सिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। तो सम इंटरमीडिएट वेवलेंथ पे क्या मिल रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम। हाँ सर। यस तो सर। सम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी ना, यस सर। और वो इंटेंसिटी मैक्सिमम तो है नहीं, वो एक वैल्यू है, some intermediate value of wavelength corresponding to maximum intensity, so that wavelength must be corresponding to some frequency also, so that frequency I put in the graph। ऐसा होता कि मैक्सिमम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती तो मिनिमम इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता, पर ऐसा तो है ही नहीं, सम इंटरमीडिएट वैल्यू पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, अगर इंटरमीडिएट वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे भी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि लैम्डा 1 corresponding to the temperature T1 which is lesser value, lambda 1 is higher, तो उसी वेवलेंथ अगर वो लैम्डा हायर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लोअर। तो जो फ्रीक्वेंसी 1 का जो पोजीशन है हमने थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 का पोजीशन क्या है, सबसे राइट में है। नीचे वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी 1 का पोजीशन क्या है, लेफ्ट में, बिकॉज लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी आर व्हाट, इनवर्सली रिलेटेड। बिकॉज इंटेंसिटी का पोजीशन तो फिक्स है ना, द पोजीशन ऑफ इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, तो उस इंटेंसिटी की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी। वही हमने ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ को हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द ग्राफ शिफ्ट फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड एंड अपर साइड। एनी डाउट? नो सर। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझे? सर वो सेकेंड वाला ग्राफ कैसे निकाला वो नहीं समझा। क्या बात कर रहे हो दिशा? ये तुम्हें समझ में आएगा जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है, हाँ सर। ये समझ में आएगा तो आगे समझाने की जरूरत ही नहीं। अगर ये समझ में आया तो बताओ कैसा, क्या समझे, बताओ, एक्सप्लेन करो। सर अगर मिनिमम लैम्डा होगा तो इंटेंसिटी जीरो होता है, तो इसके वजह से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, और अगर मैक्सिमम लैम्डा होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किस किस पोजीशन पे हो रही है फ्रीक्वेंसी वाली ग्राफ में? इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाली ग्राफ में इंटेंसिटी कहाँ कहाँ जीरो हो रही है? जीरो और इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। तो डेफिनेटली जो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है वो इंटरमीडिएट पे हो रही है। हाँ यहाँ पे सर। अगर जीरो इंटेंसिटी है, यहाँ पे जीरो इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी इंटरमीडिएट पे मैक्सिमम होगी ना। हाँ अगर सर। ग्राफ ड्रॉ करोगे या तो ऐसा ड्रॉ करोगे या तो फिर ऐसा ड्रॉ करोगे, और अगर जीरो से जीरो लाना है और वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, डेफिनेटली ऐसा और ऐसा हो सकता है ना। यस सर। हाँ सर। एक जीरो से जीरो लाना है, either you draw straight line or you can draw like this or draw like this,
ये पार्ट समझ में आया? हाँ सर। हेलो, ये क्लियर है? यस सर। ये कंफर्म है Yes, कि sir. नीचे ग्राफ तो जा नहीं सकता, इंटेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी. इंटेंसिटी इज एनर्जी, इट इज नॉट नेगेटिव. यू हैव टू पुट व्हाट लाइक दिस. तो ऊपर Yes, में हमने sir. क्या देखा कि T1 टेम्परेचर पे लैम्डा 1 वाले पोजीशन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, तो उस लैम्डा 1 की कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी बताओ? हाँ सर। क्योंकि हाँ, सर. लैम्डा 1 मान लो 2 एंगस्ट्रॉम है, 3 एंगस्ट्रॉम है, 4 एंगस्ट्रॉम है या 4000 एंगस्ट्रॉम है, उसकी कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी ना. हाँ सर। तो उस फ्रीक्वेंसी पे वो इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम. वही हमने ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया है, सेम पॉइंट. ये तो वैल्यू फिक्स है, और इस वेवलेंथ की कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? सी अपॉन लैम्डा. वो हमने यहाँ पुट कर दिया. सिमिलरली T2 टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो पॉइंट फिक्स है, लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 2 की कोरिस्पोंडिंग फिर से फ्रीक्वेंसी निकाला हमने. सी अपॉन लैम्डा, तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया. ये पॉइंट फिक्स है. तो इंटेंसिटी का पोजीशन तो फिक्स ही है ना, सिर्फ हम क्या जनरेट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का position. फ्रीक्वेंसी का पोजीशन. तो इंटरमीडिएट वेवलेंथ विल बी हैविंग इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. Yes, sir. दैट अगर 10 एंगस्ट्रॉम है, उसकी कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी ना, इट कैन नॉट बी जीरो. Yes. नहीं समझा अभी भी? समझा सर. पक्का? हाँ सर. ये जो ग्रीन बॉक्स बनाया मैंने बेटा, यही सब कुछ सफिशिएंट है कि मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ में इंटेंसिटी जीरो है, तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट सम इंटरमीडिएट वेवलेंथ. तो सिमिलरली मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है, तो इंटेंसिटी विल बी एट सम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी का पोजीशन हमने डाल दिया बस. बिकॉज वी नो दैट लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड. तो जहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. सिंपल. So you have to read till bit. What पेज बताओ तो क्या कहा हमने पढ़ने के लिए? 37. 37. ठीक. आपको मुझे पूरा भरोसा है कि लास्ट के 2-3 पेज वो समझ में नहीं आएगी, इग्नोर कर दीजिएगा, और एटलीस्ट 55 तक डेफिनेटली एक एक चीज पढ़िएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया. Okay, sir. Okay, sir. और श्रेणिल थर्सडे को हम डिस्कस कर लेंगे आपकी एडवांस का पेपर. मैंने मंगा लिया था पर डिस्कस नहीं किया, थोड़ा पढ़ा लिया मैंने, हाँ, सर. आगे बढ़ गया टॉपिक. ठीक है. ओके, चलिए. थैंक यू. Bye. Thank you, sir. बाय. Thank you, sir.